Good morning, students. Welcome to Genesis International School. Today it's your maths class, and we are going to solve exercise 3.2. Before this exercise, in exercise 3.1, we learned to multiply using Devanagari script. Okay, but today we are going to solve divisions by using Devanagari script. Okay, before coming to question number 2, let's try once question number first and part first. Okay, so let's write it down. Question number first, part first is 255 divided by 15. Okay, draw division brackets. This is the dividend. Right inside it of the bracket, this is divisor. Right left side of the bracket. Now start dividing one by one. 15 ones is 15. After subtracting we get 10, but 10 is not divisible by 15. So we are picking 5 downwards. Now it becomes 105. 15 sevens is 105. So the remainder is 0. So we can write that 255 divided by 15 is 17. This is the required answer. Okay. Now try to solve all these questions on your own. Means आपको खुद ही questions करने हैं solve. Okay, using division method. Now it's time for question number 2. Say what is the question is saying. Divide the following written in Devanagari script. In previous exercise 3.1, we have already learnt how to multiply the numbers given in Devanagari script. But in this exercise, we are going to divide the numbers written in Devanagari script. आज हम divide करेंगे, उसमें आपको multiply करना था. Okay? So first of all, let's take question number second, part first. See what is there. 684 divided by 19. What's it? 19. You can write 9 in two ways. 9 can be written as like this or like this. 19. 684 divided by 19. Okay. Again draw division brackets, and before dividing just change the given numbers into Roman numeral system, means international number system. Okay. 684 divided by 19. So 19 threes is 57. On subtracting we get 11, but 11 is not exactly divisible by 19. So pick out 4 downwards, and now just write 19 6 is 114. So the remainder is 0. See what is the quotient? 36. Now write it in Devanagari script. For 3 we write it as like this, and for 6 we write it as like this. So this is 36. Okay, which is the required answer. तो आपको अगर इसे सॉल्व करना है और आप इसे देवनागरी स्क्रिप्ट में डिवीजन ब्रैकेट्स में जब लिखेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा. सो आप क्या करेंगे, दी गई नंबर को आप किस में चेंज कर लेंगे? रोमन में. मीन्स इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक तरीके से जो नंबरिकल चलता है, और फिर उसे चेंज करने के बाद डिवीजन करेंगे. आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट क्वोटेंट 36, और इसे आप देवनागरी में ट्रांसलेट कर दीजिए.
या कन्वर्ट कर दीजिए. ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. देखिए, लाइक प्रीवियस एक्सरसाइज वहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी. इन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न द वर्ड प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, छाया बॉट 20 कॉपीज फॉर 360. छाया ने क्या किया, 20 कॉपीज बॉट यानी बाई करी, कितने रुपए में, 360 रुपीज़. स्टेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी. तो आपको बताना है वन कॉपी कितने की थी. सिंपल, जितनी कॉपीज हैं इसमें इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए. मीन्स 360 डिवाइडेड बाई 20. तो इसे मैं आपको सॉल्व करता हूँ वर्ड प्रॉब्लम में. क्वेश्चन नंबर 3. आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में ऑफ एक्सरसाइज 3.1 हमने सीखा है, लैंग्वेज यूज़ करनी है वर्ड प्रॉब्लम में. आपसे आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर देना सोल्यूशन. क्या गिवन है आपको, कितनी कॉपीज़ हैं, राइट डाउन कीजिए. गिवन नंबर ऑफ कॉपीज 20 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 20 कॉपीज. और 20 कॉपीज की टोटल कॉस्ट कितनी है, 360 रुपीज़. सी आपको यूनिट्स यूज़ करनी है. यूनिट्स मीन्स क्या होती हैं यूनिट्स. अगर आप किसी चीज़ को नापते हैं और उसका वज़न खास तौर से तो आप किस में नापते हैं, किलोग्राम एंड ग्राम. लाइकवाइज रुपीज़ हमारे इंडिया की करेंसी की यूनिट है. अब पहले से रुपीज़ को ऐसे लिखते थे, राइट. अब हम इसे चेंज करके कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये है न्यू रुपीज़ का साइन. अगर आपने देखा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है. 500, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 200 रुपीज़, जितने भी न्यू करेंसी के नोट आ रहे हैं सभी पे रुपीज़ का निशान ये नहीं है, ये है. तो ये यूनिट है. ओके, रुपी. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. टोटल कॉपीज 20 हैं और टोटल कॉस्ट 20 कॉपीज की 360 हैं. बट वो क्या कह रहा है, स्टेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी. देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 3 ही इज सेइंग टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी. तो आप लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन कॉपी इज इक्वल टू, जितनी रुपीज़ हैं उसमें नंबर ऑफ कॉपीज से आप क्या कर देंगे, डिवाइड. 360 डिवाइडेड बाई 20. ईजीएस्ट है. हम इसमें क्या करते हैं आप जानते हैं, डिवीजन ब्रैकेट्स लीजिए. 360 डिवाइडेड बाई 20. ओके, सो 21 इज 20, वी गेट 16, बट 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 20, सो हमने पिक कर लिया 0 डाउनवर्ड्स. तो 20 8 160 एंड सब्ट्रैक्टिंग वी गेट रिमाइंडर 0. जब रिमाइंडर 0 खत्म हो आ जाता है तो जो क्वोटेंट आता है ना, इसी को नोट डाउन कर दीजिए, 18 रुपीज़. सी क्वोटेंट 18 है, तो वन कॉपी 18 की थी एंड 20 कॉपीज हो गई 18 मल्टीप्लाई 20 यानी 360. चेक भी हो गया कि हमारा आंसर रिक्वायर्ड जो था वो वन कॉपी की कॉस्ट 18 रुपीज़ थी. ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन. धीरज हैव 864 बनानास. स्टेट हाउ मेनी डजन बनाना ही हैज़. वो क्या कह रहा है, धीरज के पास इतने बनानास हैं. ओके, आपको बताना है हाउ मेनी डजन बनाना ही हैज़, उसके पास कितने बनानास हैं. ये तो नंबर में है, वो डजन में पूछ रहा है. डजन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. डजन, ओके, सी 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. हमेशा है रखना, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट. मम्मी पापा से पूछना डजन क्या होता है. इसे हम हिंदी में बोलते हैं दर्जन. ओके, एक दर्जन में होते हैं कोई भी 12 चीज़ें. तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स. यूनिट्स मीन्स कुछ भी हो सकता है, वो घड़ियाँ हो सकती हैं, पेंसिल हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो गिनती में कितनी 12 है उसको हम डजन से डिनोट करते हैं, 1 डजन. तो हमें बताना है कि जो धीरज के पास 864 बनानास हैं तो आप उसे डज़न में कन्वर्ट करेंगे. बट 1 डज़न कितने का होता है, 12. देखिए 1 डज़न इज इक्वल टू 12. तो आपको इसमें क्या करना है, 864 जो हैं इसमें 12 से डिवाइड देना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सी इट्स वेरी इजी.
बस आपको ये वाला याद रखना है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, या हिंदी में 1 दर्जन बराबर 12 चीज़ें। ओके, क्या है आपको दिया हुआ वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं हम लैंग्वेज के साथ। गिवन नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू 864। ओके, in dozen there are 12 यूनिट्स। ये हमें पता होना चाहिए कि डजन में 12 यूनिट्स होती हैं। therefore bananas in dozens, जो बनानास होंगे वो डजन्स में कितने होंगे, will be 864 डिवाइडेड बाई 12। अब आपको डिवीजन ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, 864 को डिवाइड बाई 12 कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो क्योटेंट रिक्वायर्ड आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है, आप क्या करेंगे 864 में डिवाइड करेंगे बाई 12, क्योंकि एक डजन में 12 होते हैं। सो 12 5 60, 12 72, 12 7 84, you get 2 but it is not divisible by 12, तो हमने इसे पिक डाउन कर लिया 24, 12 2s is 24 and the remainder becomes 0। सी आपको क्वोटिएंट क्या आया है इस क्वेश्चन के लिए 72। तो क्वोटिएंट 72 है, इसे आप इजीली यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि टोटल 72 डजन्स। मतलब धीरज के पास 864 बनानास थे, बट इन डजन्स मतलब 12-12 अगर हम उसमें से छांटते चलें तो वो 72 डजन्स बन जाएंगे। ओके, मतलब इनमें से हर एक डजन में 12 बनानास हैं, तो 72 डजन्स का मतलब है 72 मल्टीप्लाई 12 जो आएगा 864। तो इसे हमने चेक भी कर लिया। नेक्स्ट, सिमिलरली आपको अदर क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके, if 702 people can sit in 27 buses, then state how many people can sit in a bus। वो बोल रहा है कि 27 बसेस में 702 पीपल यानी पैसेंजर के तौर पे बैठ सकते हैं, तो 1 बस में कितने, ए बस मीन्स 1 बस, इसमें 1 बस में कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं। आप क्या करेंगे 702 डिवाइडेड बाई 27। 6th क्वेश्चन, ओमकार हैज़ 400 रुपीज़। ओमकार के पास 400 रुपीज़ हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज़ 30, अगर 1 मीटर कपड़ा 30 रुपीज़ का है तो बताओ हाउ मच क्लोथ, कितना कपड़ा ही कैन बॉट, ही कैन, ये गलत फॉर्म दी है, इसे बाय कर लीजिए, ही कैन बाय एंड हाउ मच मनी रिमेन्स लेफ्ट विद हिम। अच्छा, उसके पास 400 है, 1 मीटर क्लॉथ 30 रुपीज़ में आता है, तो बताइए वो कितना क्लॉथ खरीद सकता है, हाउ मच क्लॉथ ही कैन बाय, और कितना पैसा उसके पास इसमें से बचेगा। तो सिंपल है, आप 400 में 30 से क्या कर देंगे डिवाइड, जो आएगा वो क्या होगा क्लॉथ इन मीटर्स, हाउ मच क्लॉथ उसने पूछा है ना, वो क्लॉथ आ जाएगा क्वोटिएंट इन मीटर्स। फिर हमें ये भी बताना है कि वो जितने भी मीटर्स आए उसमें इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, फिर 400 में से माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने पैसे बचे हैं और कितना कपड़ा आपने खरीदा था, वो ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा। ओके, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। गिवन ओमकार हैज़, सी गिवन था ओमकार हैज़ 400 रुपीज़, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट 30 रुपीज़, तो उसमें पूछा है लेंथ ऑफ क्लॉथ ही कैन बाई, वो कितना खरीद सकता है। जब 1 मीटर 30 रुपीज़ में आ रहा है, उसके पास 400 रुपीज़ हैं, तो हम क्या कर देंगे 400 में 30 से डिवाइड, और हमें क्या मिलेगा, अगेन ड्रॉ डिवीजन ब्रैकेट्स, 31 is 30, we get 10 but it's not divisible by 30, तो हमने 0 पिक आउट कर ली। 33 is 90, so वो खरीद सकता है 30 मीटर्स।
हाउ मेनी 13 meters. लिख दीजिए. सो ही कैन बाय 13 मीटर ऑफ क्लॉथ. वो 13 मीटर क्लॉथ खरीद सकता है. एंड 13 मीटर क्लॉथ उसको कितने का पड़ेगा? एंड द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर क्लॉथ विल बी 30 मीटर क्लॉथ कितने का पड़ेगा? 13 मल्टीप्लाई 1 मीटर की कॉस्ट क्या है? 30. तो 13 मल्टीप्लाई 30 तो 390 रुपीज़. ओके, 390 रुपीज़ हो गए. देन द मनी, फिर उसके पास जो पैसा बचेगा, ये भी क्वेश्चन में बताया है, आपको फाइंड आउट करना है. द मनी लेफ्ट विद हिम, उसके पास जो पैसे बचे वो कितने होंगे? टोटल थे 400, उसमें से 390 का क्या ले लिया? क्लॉथ. तो ही विल हैव 10 रुपीज़. तो ये आपका सेकेंड आंसर, ये आपका फर्स्ट आंसर. ओके, 13 मीटर क्लॉथ खरीद सकता है, ओनली 13 मीटर. ओके, एंड 10 रुपीज़ उसके पास लास्ट में रिमेनिंग होगी. ओके, थैंक यू, एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस योरसेल्फ. ओके.